Welcome back, students of class 10. So today we are going to continue with we are going to go into the last section of chapter 5, and we are going to first learn about what is reflex action. Let's say that there is some sharp object lying in the road, and by accident your feet falls on that sharp object. Your feet immediately gets retracted, right? But let's say a doctor is giving you injection, that is also a sharp object, but that time your arm does not retract. So why is that? Why does that one time when your feet steps on some sharp object it gets immediately retracted, and while the second time it does not? Because the first is an example of reflex action. Reflex action is an automatic nervous response which does not involve thinking and is deployed automatically from the nervous system. ये एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स हो सकता है जिसमें एक स्टिमुलस के आने से ऑटोमेटिक एक रिस्पॉन्स जनरेट किया जाता है. हाथ में गर्मी लग रहा है, हाथ हटा दो वहां से. मुंह नाक में पानी जा रहा है, नाक को बंद कर लो. तो दीज आर ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स. अगर मैं एक हथौड़ा उठा के आपके पैर में अभी मारूंगा तो ऑटोमेटिकली आपका पैर वहां से हट जाएगा. दैट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन. उसके लिए आपको दिमाग को सोचना नहीं पड़ता है कि हाँ हथौड़ा आ रहा है, कितना स्पीड में आ रहा है, क्या हो रहा है, फिर लगेगा, कैसा लगेगा, ये सब नहीं सोचता है दिमाग. दिमाग immediately takes action and it removes the leg from the harm's way. So these reflex actions are automatic responses. They do not involve the thinking part of the brain. वहां पे ब्रेन की तरह थिंकिंग का जरूरत नहीं होता है. ओके वहां पे क्या होता है, एक स्टिमुलस आता है. स्टिमुलस इज लाइक जस्ट से लेट्स से देयर इज अ नीडल दैट इज देयर इन द रोड. सो व्हेन योर टच रिसेप्टर्स, जब आपका टच रिसेप्टर्स या आपका पेन रिसेप्टर्स वहां पे गिरता है, then you get that sense of pain and immediately your muscles retract. तुरंत वो मसल वापस आ जाता है. This is done by a system called the reflex arc which is connected to the spinal cord, जो spinal cord के साथ जुड़ा हुआ रहता है. वहां पे जो यही मैं बोल रहा था कि जो मेडुला ऑब्लांगेटा और पोन्स का जो काम था कि कौन सा सिग्नल जाएगा नर्व मेन ब्रेन पे जाएगा और कौन सा नहीं जाएगा, तुरंत एक्टिव करना है, वो कंट्रोल किया जाता है ये हाइंड ब्रेन से. हाइंड ब्रेन वाला पार्ट को देख लीजिएगा. तो वही वाला काम यहाँ पे होता है. यहाँ पे जैसे ही आपको तुरंत अगर कोई चीज को हम लोग देखते हैं, जैसे कोई लाइट आ रहा है, लाइट की ओर अगर हम आंख उठा के देखते हैं तो हम लोगों का आइरिस का जो मसल होता है, आंख में जो आइरिस मसल होता है, दैट एक्सपैंड्स ऑटोमेटिकली. वी डोंट हैव टू थिंक दैट ओके अब हमको आइरिस आंख बड़ा करना है, ऐसा नहीं होता है. दैट इज एन ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन. व्हेन वी स्टेप ऑन समथिंग शार्प our feet get retracted automatically. That is also a reflex action. One very good example is that is done, or one very test that is done to test a human's reflex action is the hammer और नी टेस्ट, जिसमें डॉक्टर लोग एक हैमर लेके नी में जो आपका नी पार्ट है लेग का उसमें हल्के से मारते हैं और देखते हैं कि उसके बाद नी एक मूवमेंट कर रहा है कि नहीं. If the knee moves when that hit is coming or not. So that is a taste of the reflex action that is happening. So reflex action is a very important part of our nervous system which is not controlled by the brain. जो brain से control नहीं होता है. Okay, it is generated mostly in the spinal cord part and it is much more faster than the normal motor responses. बाकी motor response से काफी fast होता है. Okay. Now next is, now we are going to look at the other components of the nervous system that we had heard about but we did not get to see. First is the peripheral nervous system. The peripheral nervous system in humans composes of all the nerves that are present throughout our body. जितने भी हमारे बॉडी में नर्व्स है
वो नर्व्स को जब हम इकट्ठा लेते हैं तो उसको कहा जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो कितने नर्व्स हैं हमारे बॉडी में? फ्रॉम आवर ब्रेन देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स दैट कम आउट। 12 जोड़ों का क्रेनियल नर्व्स निकलता है जो हमारे ब्रेन से निकलता है। दे आर कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स। एंड देयर आर 31 पेयर्स ऑफ spinal nerves that are coming out from the spinal cord. These are the total amount of nerves that are present in our body. तो ब्रेन से कितना आ रहा है? 12, और स्पाइनल कॉर्ड से कितना आ रहा है? 31 पेयर। So they are all the nerves that are the main nerves present in the body. अब वही नर्व्स जाके हमारे अलग अलग ऑर्गन में जाके और भी बहुत सारे ब्रांचेस हो जाते हैं और हर ऑर्गन को कंट्रोल करते हैं। These nerves are involved in the sensory perception. यही नर्व्स हम लोगों का जो आसपास का वर्ल्ड को हम लोग सेंस करते हैं वो सेंस करने में मदद करता है। एंड दे ऑल्सो आर इन्वॉल्व इन मोटर रिस्पॉन्स। मोटर रिस्पॉन्स मतलब मसल मूवमेंट वाला जो रिस्पॉन्स है वो सब रिस्पॉन्स भी यही नर्व्स के जरिए दिया जाता है। तो ये नर्व्स से बना हुआ जो सिस्टम रहता है उसको हम लोग कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। The third component is the autonomous nervous system. The autonomous nervous system is controlled. The nerves of the autonomous nervous system are controlled by the part that is the brain. ये brain के अंदर से ही होता है, but it is happening in the hind brain. जो hind brain में आप लोगों को बता गया था cerebellum के बारे में, that cerebellum controls the involuntary parts. तो इनवॉलेंटरी जो मसल मूवमेंट्स होते हैं लाइक द बीटिंग ऑफ द हार्ट, द पेरिस्टोलिसिस ऑफ द स्टमक मसल, जो स्टमक मसल में जो पेरिस्टोलिटिक मूवमेंट हो रहा है, जो हार्ट मसल्स जो बीट कर रहे हैं, ये सब जो मूवमेंट होता है, जैसे हम लोग का आई का ब्लिंकिंग, दैट इज ऑल्सो एन ऑटोनोमस। अगर आप और ये ऑटोमेटिकली होता रहता है तो ये सब जो ऑटोमेटिक मसल मूवमेंट बॉडी में होता रहता है दैट इज कंट्रोल्ड बाय द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ओके, नाउ ऑब्वियसली अ क्वेश्चन कम्स दैट हाउ डज द नर्व्स मेक द मसल्स मूव। जो मसल मूवमेंट होता है वो नर्व कैसे कंट्रोल करता है? आप लोगों को पता ही है कि नर्व सेल के एंड में जो रहता है, नर्व सेल के एंड में रहता है एक्सॉन का कुछ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। नर्व का जो एकदम फर्स्ट में नर्व सेल का डिस्क्रिप्शन दिखाया गया था, वहां पे जाके एक बार फिर से देख लीजिए कि ऑल द नर्व्स एंड इन सम टाइप ऑफ एन एक्सॉन बल्ब, ओके, और अ साइनेप्टिक बल्ब कहा जाता है। तो वो जब कोई मसल के एंड में जब कोई, हम लोग क्या देखे हैं कि एक नर्व के एंड में दूसरा नर्व रहता है, बट व्हेन अ नर्व इज देयर टू एक्साइट अ मसल, जब कोई नर्व जाके एक मसल से जुड़ता है तो वो बल्ब एकदम मसल का जो टिश्यू है उसके आसपास जाके रुक जाता है और वहां से न्यूरोट्रांसमीटर जो था, न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में पढ़ाया हुआ था, न्यूरोट्रांसमीटर जो था वो न्यूरोट्रांसमीटर वो बल्ब से रिलीज करता है। दैट न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड विथ सम रिसेप्टर्स प्रेजेंट विद इन द मसल। वही न्यूरोट्रांसमीटर जाके मसल्स में रखा हुआ कुछ रिसेप्टर प्रोटीन होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो वो न्यूरोट्रांसमीटर आ रहे हैं उसको पकड़ लेता है। इसको हम लोग कहते हैं जो रिसीवर प्रोटीन। एंड आफ्टर दैट रिसीवर प्रोटीन उसको पकड़ लेता है, फिर मसल के अंदर बहुत सारे केमिकल चेंजेस होता है। उसमें से एक इंपॉर्टेंट केमिकल चेंज ये है कि मसल में जो कैल्शियम का लेवल है, जो वो कैल्शियम आयन का लेवल अचानक से बहुत बढ़ जाता है एंड दैट कॉजेज द anaerobic respiration in muscles to begin। और anaerobic respiration से जो एनर्जी मिलता है उसी एनर्जी को लेके मसल का जो प्रोटीन है वो एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करता है और तभी हम लोग मसल को मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ हाउ आवर नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स आवर बॉडीज। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर।
read this chapter again and again, and we will have a doubt clearing live class after this, and where we will clear all the doubts regarding of this chapter. So before that doubt class, definitely look through and read through the chapter. Thank you.